بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں حق نیوز، میں ہوں غفران احمد چشتی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ ملک کی سیاست مسلسل کورونا کے نشانے پر، پی ٹی آئی کے بابر سلیم سواتی، وسیم خان، ڈاکٹر سمیرہ شمس بھی متاثرین میں شامل۔ صدر مملکت کا شیخ رشید کو ٹیلی فون، جلد صحت یابی کے لیے دعا گو۔ اسپتالوں میں علاج سے صحت بہتر ہو رہی ہے، شیخ رشید کی عارف علوی سے گفتگو۔ خیبر پختونخوا حکومت کا نجی اسپتالوں کی لوٹ مار روکنے کے لیے اچھا اقدام۔ نجی اسپتالوں کے لیے مریض کے علاج کے اخراجات ظاہر کرنا لازمی قرار۔ علاج کا خرچہ ویب سائٹ اور نوٹس بورڈ پر چسپاں کرنا ہوگا۔ شہباز شریف کا تنخواہوں میں 10% اضافے کا مطالبہ۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا کہ مہنگائی حد سے پار جا چکی ہے۔ سرکاری ملازمین بالخصوص کم اسکیل ملازمین کی تنخواہیں نہ بڑھانا ناقابل قبول ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ کسانوں کو اب رعایت نہیں دیں گے تو کب دیں گے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ وزیر اعظم کو سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس ہے، معیشت دباؤ میں ہے، حالات بہتر ہوتے ہی ریلیف دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی شہباز شریف کو بتائے صحت کا بجٹ آپ کے دور سے 2 گنا ہو چکا ہے، مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ کسانوں کا استحصال کرنے والے ان کے کتنے ہمدرد ہیں عوام جانتی ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے وفاقی بجٹ مسترد کرتے ہوئے نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے۔ غریب کے لیے نہ کوئی ریلیف ہے، نہ بے روزگاری ختم کرنے کے لیے کچھ کیا گیا ہے۔ سراج الحق کہتے ہیں کورونا وائرس سے حکومت کو بہانہ مل گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ IMF سے مشورے ہوئے مگر اپوزیشن اور تاجروں سے کوئی بات نہ کی گئی۔ 1.70 کروڑ لوگوں کے بے روزگار ہونے کا خدشہ ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر کا مطالبہ ہے کہ سندھ حکومت وعدے پورے کرے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا اجمل وزیر نے مطالبہ کیا ہے کہ سندھ حکومت وعدے نبھائے، قبائلیوں کو NFC کا 3% حصہ دے۔ اپوزیشن کو کورونا پر منفی سیاست کی بجائے ہوش کے ناخن لینے چاہیے۔ اجمل وزیر نے کہا کہ وفاقی حکومت نے ٹیکس فری بجٹ دیا ہے، کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا۔ پی ٹی آئی رہنما فردوس شمیم نقوی کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت صوبائی کارڈ کھیل رہی ہے، تفرقہ بازی کرنا سندھ حکومت کی عادت بن چکی ہے۔ نیب کا سلمان شہباز کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کا فیصلہ۔ سلمان شہباز منی لانڈرنگ کیس میں اشتہاری ہو چکے ہیں۔ ترجمان نیب نے کہا کہ قانون کے مطابق برطانوی کرائم ایجنسی سے رابطہ کیا جائے گا۔ گورنر پنجاب اور یونیورسٹیز چانسلر چودھری سرور کا تاریخی اقدام۔ یونیورسٹیز میں ترجمے کے ساتھ قرآن پاک پڑھانے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ پڑھے بغیر ڈگری نہیں ملے گی۔ خبروں کی تفصیل ایک شارٹ بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کورونا وائرس سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما سردار فیاض علی خان اور میر رضوان علی خان کی روح کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا۔ تفصیلات جانتے ہیں مظہر احمد صدیقی کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما چیف سردار فیاض علی خان لونڈ، پیپے ضلع کوٹکی کے صدر میر بابر علی خان لونڈ اور میر اسد علی خان لونڈ کے چھوٹے بھائی شہید میر رضوان علی خان لونڈ کی روح کو ایصال ثواب پہنچانے کے لیے پیپلز پارٹی سٹی کوٹکی کے صدر عبد المجید لاکھو کی جانب سے سٹی آفس کوٹکی میں قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا، جس میں پیپے ضلع کوٹکی کے جنرل سیکریٹری سکندر لاکھو، وڈیرو عبد الغنی لاکھو، شوکت علی لکاری، ڈاکٹر محمد یاسین اللہ سمیت شہر کی معززین شخصیت، پیپے کے ورکروں اور عہدیداروں
रिश्तेदारों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर कुरान खानी की गई और मरहूम शहीद मीर रिजवान अली खान लुंड की रूह को एहसास जवाब पहुंचाने के लिए दुआ की गई, जबकि आखिर में लंगर भी तकसीम किया गया। मजहर अहमद सिद्दीकी, घोटकी। खैरपुर नाथिन शाह में खोसा बरादरी का जामशोर पुलिस के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा। तफसीलात जानते हैं अहमद हुसैन चांडियो की इस रिपोर्ट में। खैरपुर नाथिन शाह में खोसा बरादरी ने जामशोर पुलिस के खिलाफ प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। उस मौका पे मुजाहरीन का कहना था कि बेगुनाह धरती धड़न के लड़ायो वञे थो, उन्हनि जूं पगारूं बंदि, उन्हनि सां ज़ुल्म, नंढड़ा ॿार उहे धकी गोलियूं लॻण सबबि जल्दी ज़ख़्मी आहिनि, औरतूं जेल, ज़ुल्म आहे छा आहे, उन्हनि खे लड़ायो वञे थो ज़ोरी। वरी इंसाफ़ घुरण लाइ अचूं था, चवंदा दहशत गर्द आहिनि, जेको डीपीओ साहिब खे हटायो वञे, महिरबानी। जेके मज़लूम आहिनि जंहिं न का शइ ॼाण नहीं कोन था, उहे वरी दहशत गर्द थी विया आहिनि। किथां जो इंसाफ़ आहे? तव्हांजा मुतालबा छा आहिनि? असांजो इहो मुतालबो आहे त इन्हनि सभिनी SSP साहब खे हटायो वञे ऐं असांखे इंसाफ़ खपे। इंसाफ़ इहो खपे त इन्हनि जेके बि इन्हनि माण्हुनि ते जेके ज़ुल्म थिया आहिनि, जन ते पूरियूं FIR कयूं वयूं आहिनि, उहे सभु रद्द कया वञनि ऐं इहे सभु जेके ॻोठाणा आहिनि उहे गैस कंपनी में कमु कनि था, उन्हनि खे पघारूं ॾिए वञनि ऐं उहा गैस कंपनी बंदि थियणु न खपे। की जाए कैमरा टीम के साथ अहमद हुसैन चांडियो, हक न्यूज़, खैरपुर नाथिन शाह। कंदकोट में सिंध के फनकारों की तंजीम जुल्फ़िकार मंगी इत्तेहाद ने 15 ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। तफसीलात जानते हैं फिदा हुसैन मरी की इस रिपोर्ट में। कंदकोट में सिंध के फनकारों की तंजीम जुल्फ़िकार मंगी इत्तेहाद की तरफ से नामवार फनकार जुल्फ़िकार मंगी, जोगी जलाल, मास्टर फतेह अली, शाहबान चाचड़, अख्तियार दायो और उस्ताद सुधीर समो की क़यादत में अपने हकूक़ के लिए 15 ऑफिस के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया गया और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सर, हमारे मुतालबात जो हैं वो गवर्नमेंट से सकाफत खाते से है कि जो मुस्तहिक फ़नकार और मुस्तहिक म्यूज़िशन वाले हैं हमारे सिंध में बहुत सारे। आज हम कंदकोट में आए हैं, माशाल्लाह कंदकोट के भी बहुत सारे 200-250 फनकार यहाँ कंदकोट के हैं, उनको किसी को वजीफ़ा नहीं मिला। गरीब फनकार कहाँ जाए? साजिदे हैं, अदाकार हैं, म्यूजिशियन हैं, कहाँ ही हैं। यहाँ का आसा का सदर है इरफान अमान साहब, हमने उनको बोला है जो मुस्तहिक हैं वो मुस्तहिक हमारे साथ खड़े हैं। अगर वो इस टीवी चैनल के ज़रिए या वो ग्रास रूट लेवल तक ये पैसा जाना चाहिए, और जितने हमारे म्यूजिशंस गरीब हैं, जितने हमारे आर्टिस्ट गरीब हैं, बेरोज़गार हुए हैं, उनको ये पैसा मिलना चाहिए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं मज़ीद? हम यही कहना चाहते हैं कि अगर नहीं हुआ हमारे मुतालबात को नहीं माना गया तो हम इंशाल्लाह अपने एंड तक जाएंगे, हम कराची तक जाएंगे। और मैं अपने सारे साथियों के समेत कंदकोट में, क्योंकि कंदकोट और कश्मीर कहते हैं कराची से कश्मीर, तो ये कराची से कश्मीर तक का नारा लग चुका है अभी। और ये कश्मीर में खड़े होकर, मैं कंदकोट में खड़े होकर ये ऐलान करता हूँ कि अगर हमारे मुतालबात नहीं माने गए, अगर हमारी बातों को कंसीडर नहीं किया गया, तो कराची प्रेस क्लब के सामने मैं खुद को आग लगा दूंगा, लेकिन इनके जुल्म के खिलाफ खामोश नहीं बैठूंगा। के नामवार फनकारों की तंजीम का मजीद कहना है कि हमारे मुतालबे मानकर हमें चेक फराम करें। अगर हमारे जायज़ मुतालबात मंजूर नहीं किए गए तो कश्मीर से कराची तक एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन गालिब मरी के साथ फिदा हुसैन मरी, हक न्यूज़, कंदकोट। मीरपुर खास के करीब वीगो डाला कल्टी होने की वजह से सूबाई वजीर हरीराम किशोरी लाल के फर्जंद जख्मी हो गए थे, जिसकी तफसीलात जानते हैं मजहर गोरजानी की इस रिपोर्ट में। जी, कुछ रोज पहले पुरानी मीरपुर खास के करीब वीगो गाड़ी कल्टी होने की वजह से सूबाई वजीर हरीराम किशोरी लाल के फर्जंद पीपल्स पार्टी रहनुमा सेठ किरण कुमार हरीराम जख्मी हुए थे। मीरपुर खास सिविल अस्पताल से कराची रेफर किए गए थे, जहाँ पर रीढ़ की हड्डी के कामयाब ऑपरेशन किए गए थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीरपुर खास की जानिब से पीपल्स पार्टी सिटी ऑफिस में सेठ किरण हरीराम की सेहतियाबी के लिए पीपल्स पार्टी पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, शहीद जुल्फकार अली भुट्टो और कोरोना के मरीज के लिए खुसूसी दुआएं कराई गई, जिसमें जिले नायब सदर इसाक नारेजो, नियाज बलोच, शाहनवाज मुगल, शाहनवाज सुमरो, अब्दुल सलाम मेमन, इसाक गोरचानी, सदर पीपल्स पार्टी मिरुआ गोरचानी, हीरालाल मेघवाड़, रसूल बख्श मुगल, शाह बख्श लुंड, फहमीदा शाह, शमीम जंडीर, नजीरा सुमरो, जीवन मोहन भील और ओहदेदार, काउंसलर और वर्करों ने भरपूर शिरकत की। दुआ के बाद मिठाई और लंगर का भी एहतमाम किया गया। सूबाई वजीर हरीराम किशोरी लाल के
फर्जंद और पीपल्स पार्टी रहनुमा जनाब किरण हरीराम साहब की सेहतियाबी दुआ मांगते हुए कहा कि किरण हरीराम मीरपुर खास से लेकर पूरे सिंध के गरीब कौम का एक हमदर्द और अवामी रहनुमा है जो हर एक गरीब आवाम का काम करता है, चाहे रात हो दिन हो। किरण हरीराम गरीब आवाम के एहसास और मजबूरी को महसूस करते हुए ऐसा रहनुमा के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं कि किरण हरीराम को जल्द से जल्द सेहतियाब करे, पूरे मीरपुर खास और हल्के में दोबारा गरीब आवाम की खिदमत करे। हक न्यूज़ मीरवा गुरचानी। मेहड़ में बढ़ती हुई डकैतियों, चोरियों, बदअमनी के खिलाफ शहरियों, सिविल सोसाइटीज़ और दूसरी मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात जानते हैं गुलाम हुसैन पहवर की इस रिपोर्ट में। मेहड़ में बढ़ती डकैतियों, चोरियों, बदअमनी के खिलाफ शहरियों, सिविल सोसाइटी और मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमाओं, कौमी अवामी तहरीक के मरकजी सीनियर नायब सदर मुनवर जतोई, अवामी वर्कर्स पार्टी के रहनुमा सुमेर मक्सी, मेहड़ बचाओ तहरीक के रहनुमा इमरान डेपर, नौजवान शहरी इत्तेहाद के रहनुमा हिजबुल्लाह मंगी, अख्तर जो एडवोकेट आबिद करोड़ और दीगर की रहनुमाई में पेटो चौक से नेशनल प्रेस क्लब मेहड़ तक एहतजाजी मुजाहरा करके सख्त नारेबाजी की। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातें करते हुए कहा कि मेहड़ में गुज़श्ता कुछ अरसा से बदअमनी उरूज पर है, शहरी अपने इलाकों में महफूज नहीं हैं। ऐसी सूरत-हाल के जिम्मेदार पुलिस इंतजामिया है। उन्होंने कहा कि पुलिस का काम लोगों को अमन अमान फराम करना है, मगर वो जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने से कासिर है। उन्होंने IG सिंध, DIG हैदराबाद और SSP दादू से मुतालबा किया कि मेहड़ तहसील में बढ़ती हुई बदअमनी का नोटिस लेकर दूसरी सूरत में अमन अमान की बहाली और लूटी हुई डकैतियों और चोरियों की वापसी तक एहतजाजी तहरीक जारी रहेगी। गुलाम हुसैन पवार, हक न्यूज़, मेहड़। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए हक न्यूज़।